Friends, I hope you all are doing well. So, this class, just for the recap, just for the reinforcement of CAT 2, that is on Monday, and I want you all to score good marks at that assessment. Okay, without wasting our time, we must start what is coming in the topic, what is coming in the assessment. You already know, we have discussed everything in the class. From the zero to the Z. We have discussed everything in the class that is coming into the new, that is coming into the assessment that is on Monday. But I just wanted you all to clear your concepts, take it through this video. Just wanted to recap all the concepts, all the jabal up things that we have discussed in the class in this particular video. And I hope after watching this video, you all will get benefit. You will all get clear about all the confusions that have in your mind. Okay, so do must this video, do must watch this video, and constantly just listen what I'm saying. You don't have to practice all this thing. You just have to listen what I'm trying to say, and you have to got the concept that I'm discussing in this class. Okay, so sir, reinforcement में क्या चीजें आ रही है? Reinforcement, the first topics, without going first, before going to on towards the topic, I have to discuss one thing related to the paper. So that the paper is divided in two portions. That is, one is of paper one, okay, and the other one is of paper two. Sir, in paper one, you are not allowed to use the calculator, which means you have to show every working for each and every part. Okay, like for the minor, like for the multiplication, for everything. If I take an example of else from the assessment, any question, like if you have to find out the square root of 196. So you are not allowed to write under root 196 in the calculator and direct write the answers of 40. Okay, you are required to show all your working. You are required to find prime factors. You are required to make the pairs of the following and then cancel out the square with the square root and then find out that the answer is 40. Okay, this is the procedure for paper one, and as well as for paper two, you have to show the working, but you are given with the calculator to recheck your answers, to recheck everything that you have done in the paper. But in paper one, you have nothing to recheck your answer. Just be focused, be calm while doing mathematics paper. I always recommend you guys to be calm while doing mathematics paper. You are क्योंकि मैथमेटिक्स में टाइम का कभी मसला नहीं होता, मैथमेटिक्स में मसला होता है, दैट इज ऑफ सिली मिस्टेक्स, दैट इज ऑफ conceptual mistakes. Okay, so let's move on towards the topics. I will not take much of your time, just winding up everything. Okay, so first of all, the topics are that is coming into the assessment, that is for factors and multiples. Sir, any other topic that is coming? Yes, square numbers and cube numbers, you all know square and cube numbers. And the third one, sir, the third one, last but not least, we have discussed many of the questions in the class: ratio, rate, and proportion. Sir, simple is that. Everything is clear about it? Okay. सर, तो ये चीजें आ रही है, तो आप क्या डिस्कस करेंगे? सवाल, अच्छा, मैं जो है ना, I'm only going to discuss the pattern of the questions, not the answers. Just the pattern of the question the examiner is going to ask you in the paper. Okay, you have to think, you have to, but it's totally dependent upon you, that how do you react while you see the question, how do you solve it, how do you manipulate the questions, things in the ratio, rate, and proportion questions. Okay, each and every topic has its own technique to do the question, and I have guided you that technique. I am just revising that techniques in the class. Okay, sir, coming on towards the ratio and ratio, rate, factors and multiples, the first topic. फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में सर सबसे पहला क्वेश्चन ये आ सकता है, अगर हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में आ सकता है. सर, किस तरीके से आ सकता है? अब फैक्टर्स क्या होते हैं सर, एक रिवीजन दे, सब भूल गए हम. तो अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे 8 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो 1, 2, 4 and 8 are the factors of 8. Okay, and if I have to find the first 6 multiples of 8, so 8, 16, 24, 32, 40 and 48. These are the first 6 multiples of 8. Okay, so फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का कैलकुलेट होगा सर. अब सर क्या प्रोसीजर होगा? अब सर प्रोसीजर ये होगा, एक ट्रिकी टर्म यहाँ पर ऐड होती है. द ट्रिकी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि समटाइम्स द क्वेश्चन डिमांड्स अस व्हाट इज द सम, व्हाट इज द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 8. सो सर, व्हाट इज द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 8 का मतलब क्या है?
Now you have to be factors of A. Now you have to be careful while solving this type of question. Sir, how do we solve this type of question? The question is just simply asking you the sum. Okay, do not write only the factors in the answer. You have calculated the factors. You have calculated the 1, 2, 4, and 8 is the factors of 8, are the factors of 8. Now you have to add up them, and then you have to just simply write the answer of the summation of all the factors. So we can say that 1 plus 2 is equals to 3, and 3 plus 4 is 7, 7 plus 8 15 is going to be the answer. Okay. So now we got it. Okay, 15 is going to be the answer of our question. Okay. Now sir, अब क्या करेंगे? अब सर ये तो हमारे पास एक क्वेश्चन की कैटेगरी आ गई कि इस तरीके से पेपर 1 में क्वेश्चन आ सकता है. सर और कोई तरीका होगा फैक्टर्स एंड मल्टीपल पूछने का? बिल्कुल सर. सर दूसरा क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास. दूसरी बात अगर हम करने जाएं तो दूसरी बात आ सकती है प्राइम फैक्टराइजेशन की. अब सर ये प्राइम फैक्टराइजेशन कौन सी चीज है? प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बताएं कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है. अब प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं डिस्क्राइब करूं तो प्राइम फैक्टराइजेशन इज जस्ट लाइक यू हैव टू फैक्टराइज द फॉलोइंग by using only prime numbers. Okay ना? So sir ये किस तरीके से थोड़ा सा एग्जांपल से थ्रू एक्सप्लेन करें. If I have given the number of 640 and I have to find out the prime factors of 640. Now how do I find the prime factor of 640? We have two different methods. One is of we know this we can say that the one is the factor tree method and the other one is a LCM method that we use, division method that we use in our प्रीवियस क्लासेस. ओके. सो सर अब किस तरीके से मतलब आपने कह दिया कि यूज होगा तो 640 आपने प्लेस करा अपने यहाँ पर और स्टार्ट कर दिया फैक्टर्स बनाना. तो सबसे पहले लीस्ट प्राइम नंबर हमारे पास 2 होता है. 2 से डिविजिबल है 640. 2 2 3 is 6, 2 2 is 4 and 320. Now 160, now 80, now 40, now 20, now 10, and now 5. And I'm on the number that I have the factors. These lists are the factors of my 640 prime factors. तो सर इसको लिखने की दो फॉर्म है. एक तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं. पहली फॉर्म आपके पास क्या है? तो पहली फॉर्म आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2 multiplied by 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 5. That is too huge and that is too hectic approach. And the other one is that 1 2 3 4 5 6 7. There are 7 2's. So we can write it as 2 to the power 7 multiplied by 5. That is called the index notation. That is called the index notation. Okay, got it? Okay, that is called the index notation of our answer. So sir ये चीज भी अब हमारे पास क्लियर हो गई कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसी होगी. Now coming on towards another thing that is similar to it, which is LCM and HCM. In factors and multiple we have studied about LCM and HCF. सर LCM और HCF क्या आप हमें उसकी बताएं? LCM HCF हमें निकालना तो आता है क्योंकि हमें पता है कि अगर 2 नंबर्स दिए हुए या 3 नंबर्स दिए हुए, लेट्स सपोज हमारे पास 2 नंबर्स दिए हुए 64 एंड 48, तो इसके LCM क्या होंगे? सर हम इसके LCM आराम से निकाल सकते हैं. सर बिल्कुल निकाल सकते हैं. सर इसके LCM हो जाएंगे 16 12 2 8 6 2 4 3 2 2 3 2. Now I can say it a 2 1 and then further on if I go, so 3 will be mine and this will be the factors of, if I say this will be the factors of my how much 64 and 48. तो सर ये क्या है हमारे पास? that is the LCM. that is called the LCM. क्यों LCM क्या लाया गया? सर लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स में से आपने सारे LCM उठा लिए. अब one thing I had to make clear for you guys कि do not go for the approach कि single LCM निकाल के फिर आप least common multiple देखें. That is very hectic approach. और जब numbers बढ़ जाते हैं, जब numbers 3 हो जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा difficulty होती है. और अगर आप वो प्रोसेस के साथ जाते हैं तो chances of mistakes are very high while you are doing that type of question. ठीक है. सो इसीलिए आई रिकमेंड कि जो प्रोसीजर मैं अभी बता रहा हूँ वही प्रोसीजर को अडॉप्ट करके, वही प्रोसीजर जो मैंने क्लास में भी कराया है, सेम एज इट इज, नथिंग टू चेंज, नथिंग टू वरी. यू जस्ट हैव टू मैनिपुलेट द नंबर्स इन द क्वेश्चन एंड देन यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स. ठीक है. अब एलसीएम में सर क्या होगा कि एलसीएम में आपके पास कितने 2 है, 1 2 3 4. ठीक है. 2 to the power 4 and this. So we can say
2 to the power how much, to the power we can say to the 4 4 8 8 64 64 8 और 13 3। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड इसके सारे फैक्टर्स लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 6 है और एक बार 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। एचसीएफ भी निकाल के देख लेते हैं कि अगर हमें एचसीएफ निकालना है सर, सो 64 एंड 48 है, these two are the HCF. We have to find out the HCF. So 2 32 ठीक है 24 now same as it is 2 से कैंसिल हो रहा है, हम 2 से करते रहेंगे 2 ठीक है 6 2 4 ठीक। दैट्स इट सर। यहाँ पर एचसीएफ में हम रुक जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये एलसीएम वाला काम नहीं है। दैट इज एचसीएफ, दैट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम एलसीएम। How do I have to find the HCF? HCF means highest common factor. Highest common factor का मतलब ही होता है least common multiple और highest common factor। ये दोनों अलग अलग चीजें। highest common factor का मतलब होता है कि वहां तक जहां तक दोनों नंबर एक ही फैक्टर से डिवाइड हो रहे हो, एक ही नंबर के टेबल में आ रहे हो। फैक्टर क्या होता है कि एक ही नंबर के टेबल में आना, मतलब 1 2 4 8 के फैक्टर थे तो 1 2 और 4 और 8 ये चारों के टेबल में 8 आता है। ठीक है, तो ये जो हमारे नंबर्स हैं इन नंबर्स तक आते हैं दोनों सेम टेबल में। इसके बाद जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एचसीएफ जो होगा वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। दैट इज 2 2 4 4 to the 8 and 8 2 16। So we got an answer of 16. That is something very easy. Okay, so got it? ठीक है, 16। ओके, तो ये हमारे पास, अगर मैंने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक वगैरह करी हो दैट्स ओके, दैट्स फाइन। ठीक है, आपने जो है वो अपना उस वक्त ध्यान से करनी है सारी कैलकुलेशन। अभी मैं मैनुअल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, सो देयर माइट बी चांसेस ऑफ लैकिंग। ठीक है, कि हो सकता है मैंने मल्टीप्लिकेशन में कोई गलती कर दी हो, बट दीज आर द करेक्ट आंसर। तो ये आंसर्स गलत नहीं है, आप लोग इस आंसर्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सर फर्दर मूव करें तो क्या मूव करेंगे सर? हम कहेंगे कि अब हमारे पास डिफरेंट अप्रोच है। ठीक है, ये हमारे पास एलसीएम एचसीएफ हो गया। अब सर क्या कहता है क्वेश्चन आपसे, एलसीएम एचसीएफ के साथ आपसे वो डिमांड करता है, ही स्टार्टेड टू डिमांड अबाउट दी वर्ड प्रॉब्लम्स। अब वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या कैटेगरी होती है सर? जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स की कुछ की वर्ड्स बता देता हूँ मैं आपको, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो की वर्ड्स फॉर द वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, फॉर वर्ड प्रॉब्लम्स। तो सर कीवर्ड वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए क्या हो जाएंगे हमारे पास? अगर मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ तो मेरे सबसे पहले अगर एचसीएफ की कीवर्ड्स लिखता हूँ, एचसीएफ की कीवर्ड्स लिखता हूँ तो वो क्या होंगे मेरे पास? ओके, तो सर यहाँ पर क्या हो रहा है कि सर हमारे पास एक एचसीएफ की कैटेगरी है और एक एलसीएम की कैटेगरी है। यू कैन क्लियरली सी ऑन द बोर्ड। ठीक है, तो एचसीएफ में क्या है सर हमारे पास? एचसीएफ में अगर आपके क्वेश्चन में वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर या हाईएस्ट पॉसिबल नंबर पूछता है, व्हिच मींस कि यू हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ इन दैट क्वेश्चन। एंड इफ द क्वेश्चन नोट्स लोएस्ट और लीस्ट पॉसिबल नंबर, ठीक है, द क्वेश्चन नोट्स लोएस्ट और लीस्ट पॉसिबल नंबर, यू हैव टू फाइंड आउट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये तो सर सब आसानी से समझ आ रहा है कि एचसीएफ में क्या हो रहा है और एलसीएम में क्या हो रहा है। ठीक है, दैट्स समथिंग वेरी इजी। अब सर क्या होता है कि कभी कभार लेफ्ट ओवर का पूछ लेता है। अब सर लेफ्ट ओवर क्या चीज हो गया? अगर वो एचसीएफ कह रहा है और लेफ्ट ओवर की आइटम बात करता है तो दिस टू थिंग्स आर योर लेफ्ट ओवर पोर्शन। ठीक है, क्योंकि एचसीएफ में लेफ्ट ओवर बचता ही ये चीज है। ठीक है, एलसीएम में कभी लेफ्ट ओवर के बारे में पूछता ही नहीं है, क्योंकि एलसीएम में लेफ्ट ओवर क्या बचता है हमारे पास? हमेशा 1 1 बचता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कैटेगरीज हो गई। अच्छा, इक्वली कभी कह दें तो इक्वली भी किस में होता है? इक्वली भी किस में होता है? एचसीएफ में होता है। ऑल टुगेदर कहते हैं के टुगेदर बताओ या ऑल टुगेदर बताओ, दैट मीन्स कि वो आपसे एलसीएम की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम्स के कुछ भी की वर्ड्स हैं जो आपको मैनिपुलेट करते हैं। अच्छा, वो वाली वर्ड प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जिन्होंने होमवर्क मेरे अटेम्प्ट करे हैं उनके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर एक वो सवाल आता था, वो सवाल को क्लियर कर दें कि वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर वाला। दैट क्वेश्चन इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस राइट नाउ। आई एम गारंटिंग यू कि वो क्वेश्चन इज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन दैट आई हैव पुट इन योर कॉपीज एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम असेसमेंट में आई गेस कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इतना है। But I suggest you guys just to focus what I am telling in this video. Leave it everything in your mind, the confusions, put aside the confusions. ठीक है, just focus on what I am saying. ठीक है, and try to practice as much as you can with the word problems. ठीक है, आपके पास resources बहुत सारी है, वर्कशीट बहुत सारी है। अगर आपने कर लिए तो आप go through करो उन वर्कशीट्स को। That's the time you have to do everything. ठीक है,
तो ये हमारे पास फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम स्क्वायर नंबर्स और क्यूब नंबर्स पे एक छोटी सी बात कर लेते हैं, वो जल्दी जल्दी हो जाएगी इंशाल्लाह, वो टेंशन की बात। स्क्वायर नंबर्स और क्यूब नंबर्स पे बात हो रही है सर, तो स्क्वायर एंड क्यूब नंबर्स का क्या कैलकुलेशन थी? अच्छा, अगर मैं एक बात कहूँ कि मैं पहले कहता था कि स्क्वायर नंबर क्या होता है सर, इफ आई रोट इट ओवर हियर, कि स्क्वायर नंबर में क्या होता है कि अगर मुझे 2 का स्क्वायर लिखना है, विच मीन्स कि 2 will be multiplied with 2. 2 square is equals to, sorry multiplication में साइन आ गया, 2 multiplied by 2 that is equals to 4। इसी चीज का स्क्वायर लेना, उस चीज को उसी नंबर से उतनी बार मल्टीप्लाई कर, जैसे 2 बार मल्टीप्लाई कर, जस्ट लाइक 16 का लेना है स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा 16 मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, जस्ट लाइक मुझे 16 मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, वैसे ही अगर मुझे 14 का लेना है तो मैं 14 का ले लूंगा, दैट इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 14, दैट इज इक्वल टू 196। वैसे ही अगर मुझे 15 का लेना है तो 15 का स्क्वायर ले लूंगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 15, दैट इज इक्वल टू 225। तो सर ये सारी चीजें हमारे पास क्लियर हो गई, आई गेस ये भी 269 होता है आई गेस, बट चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास सर, हमारे पास 256 होता है, गेस सॉरी 269 256। ठीक है, तो सर हमारे पास ये स्क्वायर नंबर्स की कैटेगरीज आ गई। अच्छा, क्यूब नंबर्स में क्या होता होगा सर? क्यूब नंबर्स सिमिलर टू स्क्वायर नंबर्स, अगर वो 2 का क्यूब कह रहा है, उसका मतलब ये है कि आपको 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। पावर के में कितनी बार है? 3 बार। तो कितनी बार मल्टीप्लाई कराएंगे? 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का क्यूब क्या आ जाता है? 8 आ जाता है। अगर वो 6 का क्यूब पूछ रहा है, लेट्स सपोज, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 होगा, दैट इज इक्वल टू 216। वी नो कि क्या होता है कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, एंड 36 विल बी मल्टीप्लाइड विद 6 विल बी इक्वल टू 216। वैसे अगर 5 का कह रहा है तो 5 कैसे होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज इक्वल टू 125। ठीक है, तो ये चीजें होती है आपके पास कि आपने किस तरीके से क्यूब नंबर्स फाइंड करने हैं, किस तरीके से स्क्वायर नंबर्स फाइंड करने हैं। वैसे अगर वो 4 का स्क्वायर पूछ लेता है, 4 का क्यूब पूछ लेता है, तो वो आप क्या करोगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज इक्वल टू 64। तो आपके पास ये आपके जहन में चीज होनी चाहिए कि क्यूब में आपने क्या प्रोसीजर करना है और स्क्वायर में आपने क्या करना है। स्क्वायर में 2 बार मल्टीप्लाई होंगे वही नंबर, और क्यूब में 3 बार मल्टीप्लाई होंगे। अच्छा, अब सर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पे बात करते हैं थोड़ी सी। तो स्क्वायर रूट में क्या होता है मेरा बेटा, कि स्क्वायर रूट में आप क्या करते हैं कि आपको लेट सपोज एक नंबर दे दिया गया, दैट नंबर इज, लेट सपोज आपको दे दिया गया, ओके, इफ आई टोल्ड यू यू आर गिवन विद 144, ठीक है, अंडर रूट 144। सर आप इसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? अच्छा, मैं इसको फाइंड आउट करने की बजाय मैं इसको 1.44 कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ अब सर, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 1.44 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहा हूँ। डेसिमल वाला मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि डेसिमल वाले में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, इसमें आपका वो प्रोसीजर भी आएगा, आपने किस तरीके से कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब डेसिमल कहाँ है मेरा? 1 के बाद है, तो मुझे कितने 2 आगे लेके जाना है। जब मुझे डेसिमल 2 आगे लेके जाना है, ठीक है, तो 1.44 से 2 आगे लेके जाऊंगा। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर जब आगे लेके जाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारे पास? स्क्वायर रूट है। क्या है हमारे पास यहाँ पर? क्या है हमारे पास यहाँ पर? स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट में ये होता है कि आप इसकी ऑल्टरनेट वर्किंग करते हैं। 144 आप तो लिखेंगे, लेकिन उसको डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और इसको अंडर रूट स्क्वायर में लिख देंगे। ये आप रिवर्स चाहते हैं, ठीक है, ये बात हम काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं क्लास। अब क्या होता है सर कि अब आपने ऊपर वाले का अलग स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 144 का, और नीचे वाले का अलग तरीके से फाइंड आउट करना है। ठीक है सर, नीचे वाले को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? ऊपर वाले का वही तरीका है, एलसीएम वाला। ठीक है, सिमिलर, वेरी सिमिलर। ठीक है, आप क्या करेंगे? 144 है, आप इसको स्टार्ट कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 7 2 2 3 2 6 18 2 9। ठीक है, उसके बाद 3 3 3 1। सर क्या कह सकते हैं कितने पेयर्स बन रहे हैं मेरे पास? अगर मैं 144 के पेयर्स बनाना चाह रहा हूँ, अंडर रूट 144 के अंडर रूट में ही कुछ पेयर्स बनेंगे, इंडेक्स नोटेशन में लिखूंगा लेकिन 2 2 का। तो 2 स्क्वायर एक बन गया पेयर, दूसरा पेयर सर ये बन गया मेरे पास 2 स्क्वायर, और तीसरा पेयर 3 का बन रहा है, दैट इज 3 स्क्वायर। क्या मैं इन तीनों के स्क्वायर्स को अंडर रूट से कैंसिल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं सर। जब ये कैंसिल हो गए तो लेफ्ट ओवर आइटम्स क्या बच गए? 2 2 2 2 2 3, सॉरी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12। तो आई गॉट एन आंसर ऑफ 12। और सर 100 का अगर मैं 100 करना चाह रहा हूँ, तो 100 का मुझे पता है सर, बहुत आसान है कि मुझे वैसे भी पता है कि 100 का 10 होता है, लेकिन मैं प्रूव भी कर लेता हूँ कि होता भी है या नहीं होता। तो ये हमारे पास, ठीक है, 100 के क्या पेयर्स बन गए? 100 अंडर रूट में लिखेंगे आप, सॉरी, आपने 100 अंडर रूट में लिखा, आपने यहाँ पर 2 पेयर्स लिखे, एक 2 का पेयर है, एक 5 का पेयर है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, एंड 2 5 10, यू विल गेट एन आंसर ऑफ 10, दैट इज समथिंग वेरी इजी।
तो सर यहाँ पर आपको 10 मिल गया और यहाँ पर 12 मिल गया। अब ये किस तरीके से लिखा हुआ था, 144 का क्या है 12 है, और 10 का 100 का क्या है सर, मेरे पास 10 है। क्या मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करूँ तो मेरे पास 1.2 आता है। सर मुझे कैलकुलेटर में जाने की जरूरत भी नहीं है, मुझे पता है कि जब कोई चीज किसी नंबर से डिवाइड 10 या 100 से डिवाइड हो रही हो तो पॉइंट कहीं नहीं होता, तो पॉइंट कहाँ होता है, आखिरी में होता है। तो ये 10 से डिवाइड हो रहा है, मतलब एक जीरो कैंसिल होगा तो डेसिमल एक प्लेस पीछे जाएगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 1.2। ठीक है, ये चीज आपको क्यूब रूट स्क्वायर रूट में करनी है। अब क्यूब रूट में भी सिमिलर चीजें सिर्फ आपने ये करना है, सिर्फ आपने ये करना है कि आपने क्यूब रूट में 3 के पेयर बनाने, 2 के पेयर नहीं बनाने। जैसे आपने अगर ये 2 आ रहा है ना तो आपने 3 का पेयर बनाना है। यू डू नॉट हैव टू मेक पेयर्स ऑफ 2। आप क्या करेंगे, 3 2 के पेयर्स बना के 2 क्यूब रखेंगे और ऐसे 3 क्यूब भी, ऐसे आपके क्वेश्चन में ही आ रहा हो, फिर आप कैंसिल आउट करते जाएंगे एंड देन आप आंसर मिल जाएगा आपको। तो दैट इज समथिंग कि आपने इस तरीके से करना है। गॉट इट, क्लियर अबाउट इट। तो यहाँ स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में ये चीज हो जाती है। अच्छा सर, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के मुझे वो बता दें थोड़ा सा, मुझे समझ नहीं आ रही, क्या क्या बता दूं थोड़ा सा, उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स की कीज बता दें। अच्छा, स्क्वायर रूट की वर्ड प्रॉब्लम कैसे आएगी कि वो एरिया पूछ रहा होगा, और क्यूब रूट में भी यही है, एरिया वगैरह की बात चल रही है। अच्छा, जब हमने बात करी थी वर्ड प्रॉब्लम्स की, हमने एरिया ऑफ सर्कल की बात करी थी, वो एरिया ऑफ सर्कल नहीं होगा हमारे पास। स्क्वायर में एरिया ऑफ स्क्वायर आता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आता है, ठीक है, ये सारी चीजें आती है। एरिया ऑफ स्क्वायर ही मोस्ट ऑफ द टाइम आएगा, और क्यूब में वॉल्यूम ऑफ क्यूब आता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब और एरिया ऑफ स्क्वायर पे बात होगी। तो जब भी वो एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें तो आपको स्क्वायर रूट लेना, आप समझ जाएंगे। एरिया गिवन है तो स्क्वायर रूट लोगे, लेंथ गिवन है तो स्क्वायर लोगे, तो आपके पास एरिया आ जाएगा। वैसे ही अगर आपके पास लेट सपोज क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात कर रहा है, तो अगर आपके पास वॉल्यूम गिवन है 1000, तो आप क्या करेंगे, इसकी अगर लेंथ निकालनी है तो आप इस पे क्यूब लगा देंगे बोथ साइड्स। जब आप क्यूब लगाएंगे ना तो 1000 का क्यूब आप निकालेंगे तो आपके पास लेंथ आ रही होगी 10, उसका आंसर 10 आ रहा होगा और वही आपकी लेंथ कहलाएगी। ठीक है, दैट्स इट, क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड टॉपिक, दैट इज अ वेरी इजी टॉपिक। इसको थोड़ा सा हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करा है, तो इसमें यहाँ पर हम थोड़ा हल्का हाथ रखेंगे, दैट इज रेशियो, रेट एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रेशियो। सर रेशियो में क्या था, रेशियो में दो कैटेगरीज थी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, रेशियो में हमने बात कही थी कि हमारे पास जो रेशियो स्टार्ट होता है उसमें दो कैटेगरीज में रेशियो डिवाइड हो जाता है। एक कैटेगरी इंक्रीज की होती है, एक कैटेगरी डिक्रीज की होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम सवाल भी इन्हीं से बन के आता है। ठीक है, अब सर यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज का कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अब क्या है सर, थोड़ा सा इसको देखिएगा और से, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। जब इंक्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं इंक्रीज की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या बात कर रहा हूँ कि सर हमारे पास जो फ्रैक्शन होगा, लेट्स सपोज मेरा रेशियो, अगर मेरा रेशियो दिया हुआ है 6:4, विच मीन्स कि अगर इस फ्रैक्शन को मैं ऐसे लिखूं तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मुझे पता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान ही क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसका होता है, इंक्रीजिंग का होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंक्रीजिंग रेशियो। वैसे ही सर डिक्रीज की आप बात करें तो डिक्रीज में क्या होता होगा, इसका ऑल्टरनेट होता होगा। अगर 4:5 लिखा हुआ है तो 4:5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ये कौन सा फ्रैक्शन बन रहा है, प्रॉपर बन रहा है। अच्छा, इम्प्रॉपर और प्रॉपर में फर्क क्या है सर, ये बता दें, बहुत से बच्चों को सवाल होगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें आपके पास न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, और प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दोस फ्रैक्शन वेयर न्यूमिनेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो प्रॉपर आ गया, और ये हमें पता है कि कौन सा होता है, ये हमारे पास डिक्रीजिंग होता है। तो ये भी हो गई सर हमारे पास कहानी। अच्छा, जब ये कहानी हो गई सर, अब एक और से चीज सुनिएगा। एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसमें ही सबको क्लियर कर दूंगा। एक क्वेश्चन है, इंक्रीज 75 in the ratio 4:5। गुड, फेयर इनफ। अच्छा, 75 को इंक्रीज एंड डिक्रीज, सॉरी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इंक्रीज भी करना है और आपने डिक्रीज भी करना है। क्वेश्चन ये क्या है, 75 आपका हमेशा ओल्ड रहेगा, जो नंबर गिवन होगा वो हमेशा क्या रहेगा, ओल्ड। हमें पता है रेशियो कैसे होता है, न्यू इज टू ओल्ड। हम अगर अपने रेशियो को लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, 4:5। क्या ये रेशियो प्रॉपर है, बिल्कुल सर प्रॉपर है। प्रॉपर का मतलब क्या है सर, हमारे पास डिक्रीजिंग है। अगर इसको डिक्रीज करना है तो मैं क्या करूंगा सर, डिक्रीज करने के लिए ओल्ड के नीचे 10 लाइक ओल्ड लिख दूंगा, अपने फ्रैक्शन को सेम रखूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, आई गेट एन आंसर। ठीक है, इज इट क्लियर, यहाँ तक बात समझ आ गई सबको। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा, 300 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 60 आ जाएगा। तो एक अगर एक्स को मैंने डिक्रीज करा तो एक्स क्या बन गया, मेरे पास 60 बन गया। क्या ये बात सबको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ये क्या करा था मैंने,
जरा मैं लिख लेता हूँ, डिक्रीज। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इंक्रीज। सवाल सेम है, सारी चीजें सेम। ओल्ड क्या है मेरे पास, अच्छा मैं पहले लिख लूँ न्यूज टू ओल्ड अपने पास रेशो, ठीक है। क्या कह सकता हूँ मैं, रेशो किस में है, जरा रेशो को गौर से देखना। अब आइडेंटिफाई करने वाली चीज, हमने पिछले उसमें भी आइडेंटिफाई करा, रेशो क्या है, प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब क्या है, डिक्रीज। कमांड क्या कह रही है हमारे पास, इंक्रीज। तो कमांड और रेशो में क्या हो गया, मिसमैच हो गया। जब कमांड और रेशो में मिस मैच आ जाए ना, तो तब आप क्या करते हैं, रेशो को 4:4 5:4 लिखेंगे। ओल्ड की जगह ओल्ड आएगा और यह यहाँ पर एक्स हो जाएगा। 75 × 5 हमारे पास क्या होता है, हम अगर 375 होता है, एंड 375 को आपने किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना, तो यू विल गेट एन आंसर ऑफ समथिंग दैट इज इन पॉइंट्स। ठीक है, सो दैट इज द थिंग कि आपने ये चीज करनी है, ये चीज आपने ट्राई करनी है, और यही चीज आपने पेपर में करनी है कि इंक्रीज और डिक्रीज में ख्याल रखना है। जब कमांड और रेशो मिसमैच कर रहे हो, देन यू हैव टू फ्लिप द रेशो। जब सवाल और कमांड सेम कह रहे हो, तो डू नॉट फ्लिप द रेशो। ठीक है, दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांटेड यू ऑल गाइस टू डिस्कस। ठीक है, अब सर रेट पे आ जाए। रेट क्या होता है हमारे पास, रेट एवरेज रेट होता है। ठीक है, रेट में क्या होता है हमारे पास, या तो हमारे पास एवरेज रेट गिवन होगा, ठीक है, या फिर नॉर्मल रेट निकालने की, नॉर्मल रेट। अच्छा सर, ये एवरेज रेट नॉर्मल रेट क्या कहानी कह रहे हैं, कुछ थोड़ा सा बताइए। तो अगर मैं एवरेज रेट और नॉर्मल रेट की कहानी कर रहा हूँ, तो एवरेज रेट का मतलब यह है कि अगर मेरी बात कहूँ कि एक एवरेज रेट, एक एवरेज बैट्समैन की अगर मैं वो पूछ रहा हूँ कि एक बैट्समैन है बाबर आजम है, लेट्स सपोज, उसकी वर्ल्ड कप में एवरेज रेट क्या रहा होगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज अराउंड उसका कुछ 40 या 50 के बीच में रहता है, तो दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट। और वो किस तरीके से फाइंड करा, बाबर आजम के सारे मैचेस के 9 मैचेस के स्कोर देखे, 9 मैचेस के सारे स्कोर्स देखे, उन स्कोर्स को ऐड करा और उन स्कोर्स को डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसी नंबर कितने 9 मैचेस से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, एवरेज रेट। और नॉर्मल रेट ये भी होता है। अच्छा, प्रोपोर्शंस, सर प्रोपोर्शंस भी हमारे पास क्या होते हैं, प्रोपोर्शंस भी हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और एक होता है हमारे पास इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो सर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, सर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये चीज होती है हमारे पास, यहाँ पर देख लेते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज समथिंग वेयर बहुत दोनों चीजें क्या जारी होती हैं, अब जारी होती है। अब का मतलब क्या है सर, क्या कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, पाँव से चलेगी। ओके, एक्सप्लेन करते हैं। गुड। अच्छा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या केस होता है बेटा, जब व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज समथिंग वेयर बोथ ऑफ द थिंग्स, प्रोपोर्शन में दो चीजों की बात हो रही होती है, रेशो में भी दो चीजों की बात हो रही है, रेट में भी दो चीजों की बात हो रही है, प्रोपोर्शन में भी दो चीजों की बात होती है, और वो दो चीजों के बीच का रिलेशनशिप को प्रोपोर्शन कहा जाता है। जब दो चीजों की रेशो रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो क्या वो दोनों चीजों का डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्या वो दोनों चीजें एक साथ बढ़ती हैं या दोनों चीजें एक साथ कम होती है। यहाँ पर मैंने आपको क्लास में एग्जांपल दी थी, एक कॉस्ट ऑफ, मतलब आप एक सुपर मार्केट में जाते हैं लेट्स सपोज, और सुपर मार्केट में जाके आप एक एप्पल परचेज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने 10 एप्पल परचेज करी है, तो उनकी 10 एप्पल्स की आपके पास कितनी कॉस्ट आ रही है, $100 आ रही है, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से 20 एप्पल्स परचेज करेंगे, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स बढ़े, ठीक है, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ एप्पल भी क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो दोनों चीजें क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अच्छा सर, तो ये डायरेक्ट हो गया, तो इनडायरेक्ट किस तरीके से होता होगा। इनडायरेक्ट में अगर हम एग्जांपल ले कि एक ब्रिज बन रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक वो दिया है मुझे, कॉन्ट्रैक्ट दिया है, ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, और मुझे कहा है कि भैया आपने ये काम मुकम्मल करना है 15 दिनों में। ठीक है, अब उसने मुझे गवर्नमेंट ने मुझे कितने वर्कर्स अलाउट करे, गवर्नमेंट ने मुझे वर्कर्स अलाउट करे, लेट सपोज वर्कर्स कितने अलाउट करे, गवर्नमेंट ने 15 वर्कर्स अलाउट करे, ठीक है, और कह रहे हैं 15 डेज में काम हो जाना चाहिए। मतलब 15 वर्कर्स 15 डे में काम कंप्लीट कर रहे हैं, बिल्कुल सर। तो ये डेज है, कंफ्यूज नहीं होना, ये क्या है, वर्कर्स है, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या कर, अब मेरे कुछ वर्कर्स जो है ना वो बीमार हो गए, ठीक है, 5-6 दिन काम करने के बाद मेरे वर्कर्स बीमार हो गए। जब मेरे वर्कर्स बीमार हो गए, अगर मुझे सेम डे, अगर मेरे वर्कर्स आए पहले दिन ही आए और बीमार हो गए, मतलब कुछ वर्कर्स आए नहीं बीमारी की वजह से, इन्फेक्शन आ गया उस बीमारी की वजह से, कुछ वर्कर्स आए नहीं, लेट्स सपोज 15 में से सिर्फ 8 वर्कर आते, तो अब मेरा काम कितने दिन में मुकम्मल होगा, अब मेरा काम कितने दिन में मुकम्मल होगा, ये चीज लेट सपोज मैंने कह दिया कि अब मेरा काम 10 दिन में मुकम्मल होगा, ठीक है।
तो यही चीज, अब मेरा काम 8 दिन में मुकम्मल होगा, ठीक है। अब यही चीज है कि सर आपका वर्कर बढ़े, आपके वर्कर कम हुए, तो आपके डेज कितने हो गए, आपके डेज क्या हो गए, बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे। लोग कहते हैं कि कम हो जाएंगे, लोगों ने क्या कहा कि 8 दिन, 8 वर्कर 8 ही दिन लेंगे, नहीं ये गलत है। वो डायरेक्ट में तो होता था कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो एक चीज, अब क्या होगा, आपका नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, इवेंचुअली बढ़ जाएंगे। लेट सपोज आपके नंबर ऑफ डेज, अभी मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशंस पे नहीं जा रहा, अभी मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, तो अभी आपके नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, आपके नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे 30, 15 से डबल हो जाएंगे, क्योंकि आपके 7 से वर्कर गिरे तो आपके नंबर ऑफ डेज कितने लग जाएंगे, 30 लग जाएंगे। तो ये होता है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, कि जब नंबर ऑफ वर्कर्स मेरे पास बढ़ रहे थे, जब मेरे पास नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ रहे थे, कम हो रहे थे, तो मेरे पास कितना ज्यादा टाइम लगेगा। जाहिर बात है, पहले 15 लोग 15 दिन में काम मुकम्मल करते थे, अब 8 लोग आ रहे हैं, तो 8 लोग कितने ज्यादा दिन लेंगे ना, 8 लोग ज्यादा दिन का टाइम लेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की कैटेगरी। अच्छा, अब एक चीज गौर से ऑब्जर्व कर लेना सब, कि प्रोपोर्शन में क्या होता है, हमारे पास प्रोपोर्शन में दो चीजें बनी हुई आती हैं, ठीक है, सब देख लें गौर से। प्रोपोर्शन में आपके पास लेट सपोज 80 दिया हुआ है, आपके पास x दिया हुआ है, ठीक है, आपके पास 40 दिया हुआ है और आपके पास 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब प्रोपोर्शन में फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है सर, हम क्या करते थे कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, नॉर्मल प्रोपोर्शन। सर अगर ये कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 80 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक है, सॉरी 80 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी 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 सॉरी, एंड x मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये हमारे पास 40x आ जाएगा, ये हमारे पास 160 हो जाएगा, और 160 को जब आप 40 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 4। तो आपके पास क्या आ गया सर, x की वैल्यू आ गई 4। ये क्या हुआ कि ये जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन था। अगर सर ये सेम सवाल हो और इनडायरेक्ट कहते, तो इनडायरेक्ट में क्या करेंगे सर, इनडायरेक्ट में ये करेंगे कि 80 रेशो x लिखा हुआ है, 40 रेशो 2 लिखा हुआ है, आप क्या करेंगे, सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे इनडायरेक्ट के अंदर, ठीक है, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो 80 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है, एंड 40 मल्टीप्लाई बाय 280 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के आंसर्स में जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। सो यू मस्ट हैव टू बी क्लियर अबाउट इट, कि इनडायरेक्ट में अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज लाजमी तौर पे कम होगी, और दूसरी चीज बढ़ रही है तो वो पहली चीज लाजमी तौर पे कम हो रही होगी, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का था। तो ये हमारे पास रेशियो, रेट एंड प्रोपोर्शन भी क्लियरली डिफाइंड हो गया, हमारे पास किस तरीके से कैटेगराइज सवाल आ सकते हैं ये भी डिफाइन हो गई। हमारे पास स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स की डेफिनेशन हो गई, हमारे पास एलसीएम टेकिंग, एचसीएफ टेकिंग हो गई, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ एलसीएम एचसीएफ हो गई, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का पूरा टॉपिक हो गया। तो हमारे तीनों टॉपिक्स मुकम्मल हो चुके हैं सर। अब आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग बेहतरीन अच्छा सा पेपर लिखेंगे, एंड आई जस्ट वांटेड टू से एंड दैट रिकॉर्डिंग कि यू ऑल आर माय स्टूडेंट्स, सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ठीक है, बट ट्राई टू डू, ठीक है। ऐसा नहीं है पेपर छोड़ के आ जाए, जो आप चाह रहे हैं वो करें, ठीक है। ऐसा नहीं है आपके दिल में कुछ और है और आप कर कुछ और है, दिमाग और दिल दोनों चीजों से सोच के आपने जो है ना वो आंसर्स लिखने हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। काम रह के पेपर करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल काम रह के करना है, मैथमेटिक्स कामनेस के बगैर नहीं होती, ठीक है। एंड जो चीजें सारी पढ़ा दी है मैंने, आप लोग के लिए बहुत करा है, तो आई एक्सपेक्ट 20 आउट ऑफ 20 फ्रॉम यू ऑल, ठीक है। एंड अगर किसी के नहीं भी आते, अनफॉर्चुनेटली आई एम ऑल विथ यू गाइस, ठीक है, बट ट्राई टू मेक इट एज गुड एज पॉसिबल, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।